अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو عورت اور مرد بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اپنے اس روزے کے بدلے کیا کریں؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آپشن رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی مریض عورت ہوں یا مرد، اسی طرح سے وہ عورت مرد جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے اس روزے کے بدلے کیا کریں تاکہ ان کی اس روزے کی بھرپائی ہو سکے۔ اسی طرح سے جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا آپشن اسلام کے اندر دیا گیا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس رمضان کے اندر بہت سے ایسے مسلمان عورت مرد ہیں جو ہمیشہ کے لیے بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے عورت اور مرد ہیں جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آپشن رکھا ہوا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 184 اور 85 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کچھ ہی دن تو روزے رکھنے ہیں، یہ روزے پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو، ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنے کے جو کچھ دن ہیں، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی روزہ کو ختم کرنا ہے، 29 دن یا 30 دن کا جب بھی ہو۔ اگر 29 کو چاند نہ دکھائی دے تو پھر ہمیں 30 کو دیکھنا ہے، اور 30 کو نہیں بھی دکھائی دے تو ہمیں یہ پورے 30 روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو اگر 29 روزے ہم کو ملتے ہیں یا 30 روزے ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان روزوں کے اندر یہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، یا کوئی اور
ऐसे शख्स हैं जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, वो हमेशा बीमार रहते हैं और उनको ऐसी बीमारी लगी हुई है जो ख़त्म नहीं हो रही है, वो हमेशा उनके साथ ही है। तो ऐसे लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम में बीमार हों या सफ़र में हों। इसमें दोनों के लिए ऑप्शन है। जो मुसाफिर है उसके लिए भी ऑप्शन है कि अगर मुसाफिर रोज़ा अगर छोड़ना चाहता है, उसके अंदर ताकत नहीं है सफ़र में रोज़ा रखने की, तो वो अपने मुकाम पर पहुंच जाए और जो रोज़े वो छोड़ रहा है इस सफ़र में, उसको रमज़ान के बाद उसको पूरा कर ले शव्वाल वगैरह में, उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह से ऐसा शख्स, ऐसा मरीज है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, उनकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, वो हमेशा बीमार रहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको बीमारी तो लगी हुई है लेकिन उनको ये उम्मीद है कि ये बीमारी रमज़ान के बाद सही हो जाएगी। तो जिनको ये उम्मीद है कि ये बीमारी रमज़ान के बाद सही हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएंगे, तो उनको चाहिए कि रमज़ान के अंदर जो रोज़े छोड़ रहे हैं उन रोज़ों की वो कज़ा करें। उनको फिदिया नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, उनको रोज़ा की कज़ा देना है। वो शव्वाल के महीने में या दीगर महीने में उस रोज़े को लगातार या वक्फे वक्फे से उसको मुकम्मल कर लें, उसको कज़ा दे दें, भर दें। इसी तरह से ऐसे शख्स जो ज़्यादा बूढ़े हैं, औरत हैं या मर्द हैं, या उनको ऐसी बीमारी लगी हुई है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन अल्लाह तबारक व तआला ने ये दी है कि अगर वो रोज़ा रख लें, अगर रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, अगर वो रख लें तो उनके लिए बेहतर है। नहीं तो वो क्या करें, एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। अब वो खाना कितना खिलाना है, इस ताल्लुक़ से अहादीस में देखते हैं। अहादीस के अंदर एक बात तो ये है कि इस बात पर इजमा है कि बूढ़ा आदमी जो रोज़ा रखने की ताकत न रखता हो वह रोज़ा न रखे, बल्कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन, एक गरीब को खाना खिला दे। देखिए अल इजमा ल इब्नुल मुंजिर के अंदर 129 पर। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कहते हैं, वह बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत जो रोज़ा रखने की ताकत न रखते हों, वह हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 4505 पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरह अल बकरा आयत नंबर 184 की तिलावत फरमाई, आपने पढ़ी और फरमाया, बूढ़ा शख्स जो रोज़ा रखने की इस्तात व ताकत न रखता हो वह रोज़ा रखे, बल्कि रोज़ा के बदले, एक रोज़ा के बदले रोज़ाना एक मिस्कीन को आधा शाह गंदुम दे। गंदुम गेहूं को कहते हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी उसमें शुमार कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर आधा शाह गंदुम देने का हुक्म दिया, जैसा कि सुनन दारकुतनी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 207 और हदीस नंबर 2361 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद हसन है। इस हदीस से पता चलता है कि जो लोग बूढ़े हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, रोज़ा रखने की वो ताकत नहीं रखते हैं, तो वो क्या करें, वो रोज़ा न रखें, बल्कि रोज़ाना हर रोज़ एक मिस्कीन को, एक गरीब को आधा शाह गंदुम दे दें। इसी तरह से दूसरी एक और रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मद यानी तकरीबन आधा किलो वो एक मिस्कीन को एक रोज़ा के बदले देगा, जैसा कि सुनन दारकुतनी में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 204, इसी तरह से हदीस नंबर 2349 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद भी सही है। तो इस हदीस से पता चला कि खाने पीने की चीज़ें देने का हुक्म है। जो रोज़ा नहीं रख सकता हो, चाहे वो बूढ़ा शख्स, औरत हो या मर्द हो या बीमार हो, ऐसी बीमारी लगी हुई हो जो बाद में वो सेहतमंद नहीं हो सकता है, तो उसको चाहिए कि वो फिदिया दे। और फिदिया में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
एक मद कहते हैं आधा किलो चावल दाल, यानी जो वो खाता है खाने पीने की चीज सब मिला करके आधा किलो एक मिस्किन एक गरीब को एक रोजा के बदले वो दे दे, तो उसको कजा करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिसको ये यकीन है कि मैं रमजान के बाद सेहतमंद हो जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो बाद में उस रोजा की कजा कर देगा, यानी उस रोजे की भरपाई वो करेगा। जितना रोजा वो छोड़ेगा उतना रोजा वो रमजान के बाद सवाल वगैरह में पूरा कर लेगा। इसी तरह से अगर ऐसा बीमार, ऐसा बूढ़ा मर्द हो या औरत जो पूरे महीने के रोजा नहीं रख सकते हों, तो वो चाहे तो पूरे महीने के 29 या 30 दिन के पूरे के जो फिदिया है वो गरीबों को दे सकते हैं। जैसा कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, यानी उनका ये अमल था कि जब वो है 1 साल रोजा नहीं रख सके, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि एक टब में शरीद तैयार की, यानी जो खाने पीने की चीजें थी सब मिक्स करके उन्होंने एक टब के अंदर उसको मिक्स करवाया, बनवाया, और 30 मिस्कीन को, 30 गरीबों को उन्होंने खूब पेट भर करके खिला दिए। जैसा कि सुनन दारकुतनी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206 और हदीस नंबर 2365 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। तो ये सहाबा का अमल है कि अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह से भी किया है कि जब वो 1 साल कमजोर हो गए, उनके अंदर रोजा रखने की ताकत न रही, तो उन्होंने क्या किया कि 30 मिस्कीन को एक ही टब में पूरा खाना तैयार करके और उनको पेट भर करके खिला दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।